ومن خفت موازینہ، لیکن معاملہ اگر الٹا ہو جائے، ترازو میں تولا جا رہا ہے، نیکیاں کم پڑ گئی، برائیاں زیادہ ہو گئی، ایک نیکی کم ہے، برائیاں زیادہ ہے، قرآن کہتا ہے اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ سب کے سامنے کھلم کھلا گناہ کرنے سے بچو، کیونکہ اگر کھلم کھلا گناہ کرنے لگو گے تو اللہ رب العالمین کا عذاب اس کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے۔ جانتے ہیں ہمارے اوپر عذاب کیوں مسلط ہے؟ یہ کورونا وائرس کیوں آیا ہوا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے، جب قوم، حدیث کے الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے اندر 5 چیزیں ہیں۔ جب کوئی قوم کسی گناہ کو علل اعلانیہ کرنے لگے تو اس کے اوپر ہمارا عذاب مسلط ہو جاتا ہے۔ علل اعلانیہ، شراب کھلم کھلا پیا جا رہا ہے، زنا آج کھلم کھلا ہو رہا ہے، دیکھ رہے ہیں۔ جس جانور میں اللہ کا نام لیا جائے اس جانور کو کھاؤ، اور جس جانور میں اللہ کا نام نہ لیا جائے اس جانور کو مت کھاؤ۔ جس جانور مطلب حلال جانور، حرام جانور کے کتا بلی چوہا چچندر کے پر نام لے لیں گے تھوڑی حلال ہو جائے گا۔ یعنی جو حلال جانور ہیں اس حلال جانور کو ذبح حلال کرنے کے لیے بسم اللہ اکبر کہہ کے تمہیں ذبح کرنا پڑے گا، تب وہ جانور حلال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، اللہم رب زدنی علما وارزقنی فہما، آمین۔ معزز مصلیان کرام، اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، 8ویں پارے کی تفسیر آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ 8ویں پارے کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے تعلق سے بتایا ہے، کفار مکہ کے تعلق سے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے سامنے کتنوں بھی دلیل آپ دے دیجئے، وہ دلیل کو قبول نہیں کرتے ہیں، مانتے ہی نہیں ہیں، کچھ نہ کچھ تعویل نکال دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ نہیں ماننے والے تھے وہ یہی نہیں کہتے تھے یہ رسول ہے۔ اگر اللہ کو اگر دنیا میں بھیجنا ہوتا لوگوں کی ہدایت کے لیے تو فرشتہ کیوں نہیں بھیج دیا؟ انسان کو بھیجنے کی کیا ضرورت؟ ما لہذا الرسول یاکل الطعام، یہ کیسا رسول ہے جو اپنے آپ کو رسول کہتا ہے، رشی منی کہتا ہے، پیغمبر کہتا ہے۔ یاکل الطعام، کھانا بھی ہمارے طرح ہی کھاتا ہے، وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، اور بازاروں میں بھی چلتا ہے۔ کیا بازاروں میں چلنے والا، کیا ہمارے طرح کھانا کھانے والا رسول ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کرتے ہوئے فرمایا اگر ہم ان کے درمیان فرشتے ہی بھیج دیتے، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور اگر یہ مردے کھڑے ہو کر ان سے باتیں کرنے لگتے اور گواہی دینے لگتے، پھر بھی یہ حق بات کو قبول نہیں کرتے، کیونکہ ان کے دلوں کے اندر ہی نفرت بھری ہوئی ہے۔ اور حق کیوں نہیں قبول کرتے اس کی وجہ میں نے کل بتائی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا،
ला मुबद्दिल लिकलिमातिही वहुवस्समीउल अलीम व इन तुति अक्सर मन फिल अर्ज़ि युज़िल्लुका अन सबीलिल्लाह इन यत्तबिऊन इल्ला ज़न्ना व इन हुम इल्ला यख़रुसून। कुरान करीम के बारे में फरमाया ये एक ऐसी किताब है जिसके अंदर सारी बातें सच है, झूठ नहीं है। इसमें जितनी भी बातें इसके अंदर बयान की गई है, ला रैब फी, कोई शक नहीं है इसके किताब के अंदर। पिछले ज़माने के जो वाक़यात बयान किए गए वो लैला मजनू वाले कहानी नहीं है, वो किस्से नहीं है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ये किताब सच्चाई को बयान कर रही है, ये किताब बिल्कुल सच को बयान कर रही है। व तम्मत कलिमतु रब्बिका सिद्क़न व अदला, और इंसाफ के ऊपर ये किताब दलालत करती है। कोई काम कोई बात इसके अंदर ऐसी नहीं है जो जुल्म के ऊपर आमादा करते हो लोगों को। सारी बातें अदल के ऊपर और सच्चाई के ऊपर मबनी है। ला मुबद्दिल लिकलिमाती, और इस किताब के अंदर चेंजिंग में नहीं किया जा सकता। अब कोई आदमी सोचे इस आयत को हटा दें, इस आयत को बढ़ा दें, नहीं हो सकता है। अभी मैंने बताया ना वो वसीम रिजवी हुआ ना जलील रुसवा, उसने सोचा 26 आयतों को घटा दें, ख़त्म कर दें, रिमूव करवा दें। नहीं, ला मुबद्दिल लिकलिमाति, अल्लाह की आयतें तब्दील नहीं हो सकती है। जो उसने नाजिल की है उस किताब की हिफाजत की जिम्मेदारी उसी अल्लाह ने ले रखी है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, इस किताब को नाजिल करने वाले हम हैं और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। कैसे करेंगे वो अल्लाह जानता है, और अल्लाह आज तक इस किताब की हिफाजत किए हुए है। तौरात बदल गई, ज़बूर बदल गई, इंजील बदल गई, आसमानी किताबें सहीफे बदल गए। अगर नहीं बदला तो सिर्फ ये कुरान नहीं बदला। जो कुरान जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के दौरे ज़माने के अंदर नाजिल हुआ था, वही कुरान आज भी उसी शक्ल के अंदर मौजूद है। कोई तब्दीली नहीं, कोई चेंज नहीं, कोई बदलाव नहीं। जानने वाला है। फिर फरमाया ऐ नबी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। व इन तुति अक्सर मन फिल अर्ज़ि युज़िल्लुका अन सबीलिल्लाह, जमीन के अंदर ज्यादा लोगों की तादाद उन्हीं लोगों की है जो गुमराह लोग हैं। ऐ नबी, आप ज़्यादा फिक्रमंद ना हो, आपको ज़्यादा गमगीन होने की ज़रूरत नहीं है कि आपके लोग कम हैं, आपकी बातों के ऊपर अमल लोग कम कर रहे हैं। जब नबी ने दावत दी तो तादाद बहुत कम थी। आज दुनिया में देखिए हक और सच लोगों की तादाद आज भी कम है, बुरे लोगों की तादाद आज भी ज़्यादा है। हाँ, अल्लाह की इबादत करने वाले आज भी कम हैं। मुसलमान हैं लेकिन मुसलमानों में भी देखिए अल्लाह की इबादत कहाँ कर रहे हैं। 7 मरतबा किसी जगह का चक्कर लगा लो हज हो जाएगा, हो रहा है ना। अजमेर शरीफ चले जाओ 7 बार हज कंप्लीट। हालात देख रहे हैं आप, मुसलमान होकर के हक पर नहीं है। गैर मुस्लिमों को तो छोड़िए, उनकी यहाँ 33 करोड़ देवी और देवताओं की इबादत हो रही है, 33 करोड़। और उनकी किताबों में लिखा है अगर एक भी देवी को नाराज करके मर गए तो तुम जहन्नम में जाओगे। अब बताए 33 करोड़ देवी और देवताओं को और रोजाना एक देवी को राजी करना है, तो 33 करोड़ देवी और देवताओं को राजी करने के लिए 33 करोड़ दिन का होना जरूरी है। कौन आदमी, इसका मतलब जितने भी गैर मुस्लिम भाई उसकी किताब के एतबार से सब के सब कोई जन्नत में नहीं जाएगा। 33 करोड़ उसके यहां, हमारे यहां नहीं। 33 करोड़ एक अल्लाह की इबादत कर, और एक अल्लाह की इबादत कर, वो अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा, तुमको जन्नत के अंदर दाखिल करेगा। ऐ नबी, ज्यादा लोगों की तादाद को देख करके आप घबराइए मत कि उन लोगों की तादाद कम है, मेरी तादाद कम है। नहीं, ऐसा नहीं, उसकी तादाद ज्यादा है। दलाइल देखे जाते हैं, बराहीन देखे जाते हैं। अल्लाह ताला क्वालिटी देखता है, क्वांटिटी नहीं देखता है कि तादाद में कितने हो। बदर के मौके को याद कर, तादाद 313, कुफार की तादाद 1000 की तादाद है।
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کم تعداد کی مدد فرمائی، کیونکہ وہ کم تعداد والی جماعت حق پر تھی۔ آج کل بھی دیکھیے اچھے لوگ، اور قرآن کی وآیت وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ کہ میرے نیک بندے بہت کم ہیں دنیا میں، نیک بندے بہت کم ہیں۔ رمضان میں آپ کو بندے مل جائیں گے، رمضان کے بعد بندوں کو تلاش کیجیے۔ ہاں ابھی ایک میسج آیا ہوا تھا میرے پاس، اور میسج ایسا آیا تھا کہ ابھی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے نا، ابھی شیطان کو قید کر دیا گیا، شیطان بالکل قید ہو چکا ہے، اور شیطان جب قید ہو گیا ہے تو نمازی لوگ مسجد میں دکھ رہے ہیں، نمازی لوگ مسجد میں دکھ رہے ہیں نا، لیکن کچھ دنوں کے بعد پھر ابلیس جو سرگنا ہے پھر ان لوگوں کو اغوا کرنے کی کوشش کرے گا اور پھر ان کو مسجد سے دور کر دے گا۔ تو دیکھیے شیطان کتنے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ تو زیادہ تعداد دنیا کے اندر برے لوگوں کی ہے، اچھے لوگوں کی تعداد کم ہے۔ جنت میں زیادہ تر لوگ نہیں جائیں گے، زیادہ تر لوگ جہنم میں جائیں گے۔ بعض حدیث میں آتا ہے، حدیث میں ایک بات ایسی آتی ہے کہ 1000 میں 999 جہنم کے اندر جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا۔ اب اندازہ لگا لیجیے آپ، 1000 میں 999 جہنمی، ایک جنتی، ایک جنتی، 73 فرقے ہیں۔ ہاں پہلے 72 فرقے، اب 73 فرقے، کلہم فی النار، سب کے سب جہنم الا واحد، ایک جنتی۔ اور وہ کون سی جماعت؟ جس کے اوپر میں ہوں، ما انا علیہ و اصحابی، اور جس کے اوپر میرے صحابہ، وہی جماعت جنت کے اندر جائے گی۔ اب صحابہ کرام کی طرز عمل پہ کون زندگی گزار رہا ہے اس کے اوپر غور کیجئے، وہی جماعت جنت میں جائے گی۔ نام کچھ رکھ لیجئے، نام سے آپ سوچے گا میں اہل حدیث ہوں، تو اہل حدیث ہے اور شراب بھی پی رہا، کیا جنت میں جائے گا؟ اہل حدیث ہے نماز بھی چھوڑ رہا، کیا جنت میں جائے گا؟ اہل حدیث ہے شرک کر رہا ہے، کیا جنت میں؟ نام کا تو اہل حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں نام نہیں دیکھا جاتا، کام دیکھا جاتا ہے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ اسی وجہ سے قرآن کریم کے اندر رسولوں کے نام کا تذکرہ نہیں ہے۔ بعض رسول کا نام بتا دیا گیا، بعض رسول کے قصے بتا دیے گئے، اور بعض رسولوں کے نام اور قصے نہیں بیان کیے گئے، کیونکہ اللہ کے یہاں نام نہیں، کام دیکھا جاتا ہے۔ آپ نام کا آپ کا کیا ہے پتہ نہیں، لیکن آپ کیا کام کر رہے ہو، کون سا عمل کر رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھتا ہے۔ اس کے بعد وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَفْوَاهِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ ذبح ہوتا ہے نا آپ کے یہاں، جس جانور میں اللہ کا نام لیا جائے اس جانور کو کھاؤ، اور جس جانور میں اللہ کا نام نہ لیا جائے اس جانور کو مت کھاؤ۔ جس جانور مطلب حلال جانور، حرام جانور کے کتا بلی چوہا چچندر کے پر نام لے لیں گے تھوڑی حلال ہو جائے گا۔ یعنی جو حلال جانور ہیں اس حلال جانور کو ذبح حلال کرنے کے لیے بسم اللہ اکبر کہہ کے تمہیں ذبح کرنا پڑے گا، تب وہ جانور حلال۔ اچھا، ایک مولوی صاحب کو ایک پنڈت نے پوچھ لیا، بکرا حلال کے حرام، بھینس حرام کے حلال، گائے حلال کے حرام۔ مولوی صاحب نے کہا حلال ہے۔ اچھا، جب حلال ہے تو اس کو ذبح کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسے بوٹی ایسے کاٹ کاٹ کے نکال کر کھاتے چلے جاؤ۔ جب حلال ہے تو پھر اس کو ذبح کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسے ذبح، اب حلال ہے تو کہیں سے بھی کاٹ لیجئے اور بنا کر کے اس کو کھا لیجئے۔ اچھا، غالباً ثناء اللہ امرتسری صاحب کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا تھا۔ اچھا، کہا کہ جانور پہلے حلال تھا کہ حرام تھا؟ جانور حلال ہے کہ حرام؟ بولا حلال۔ اچھا، حلال ہے تو بسم اللہ اکبر کہہ کے کیوں ذبح کر رہے ہو؟ بولا نہیں نہیں حرام تھا۔ کہا کہ اچھا حرام تھا تو بسم اللہ اکبر کہہ کے ذبح کر رہے ہو تو حلال ہو گیا؟ بولا ہاں۔ اچھا، بولا خنزیر بھی حرام ہے، کتا بھی حرام ہے، تو اس کے اوپر بھی بسم اللہ اکبر کہہ کے ذبح کر دو وہ بھی حلال ہو جائے گا؟ مولانا تو پھنس گیا۔ یعنی وہ جانور حلال ہے کہ حرام ہے؟
उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनाम, कुछ जानवर ऐसे हैं जो तुम्हारे लिए हलाल किए गए, लेकिन जब तक उस जानवरों के ऊपर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के छुरी न चलाई जाए तब तक उन जानवरों का गोश्त भी खाना तुम्हारे लिए हराम है। सनल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, अच्छा आपने शादी किया? बोला हाँ। अच्छा ये बताइए, वो बीवी शादी से पहले मंत्र पढ़ने से पहले ओम बरवम स्वाहा स्वाहा, उसके यहाँ चलता है ना, ये मंत्र तुम्हारा पढ़ने से पहले वो तुम्हारी बीवी हलाल थी कि हराम? का वो तो हराम थी। का मंत्र पढ़ा तो हराम हो गई, हलाल हो गई? बोला हाँ। बोला मंत्र में इतना पावर है? बोला हाँ। अपने बहन के ऊपर भी पढ़ लो, हलाल हो जाएगी। हाँ, ये कैसे हो सकता है? बोला जो जानवर हराम है, हराम, उसके ऊपर कितना भी मर्तबा बिस्मिल्लाह पढ़ो वो हराम ही रहेगा। जो जानवर हलाल है उसके ऊपर बिस्मिल्लाह पढ़ करके ज़बह करो वो जानवर हलाल। जैसे वो लड़कियां जो तुम्हारे ऊपर हराम है उनके साथ कितना भी मर्तबा निकाह करो वो हराम ही रहेगा, वो तुम्हारे लिए हलाल नहीं हो सकती है। लेकिन जो लड़कियां तुम्हारे लिए हलाल मतलब जिनसे शादी हो सकती है उन लड़कियों के ऊपर मंत्र पढ़ो और अन निकाह मिन सुन्नती फमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी वाले जुमला पढ़ करके निकाह पढ़ा दो, वो लड़की तुम्हारे लिए हलाल हो जाएगी। पंडित ने अच्छा अच्छा ये बात है, हाँ जानवर हलाल है लेकिन जब तक मंत्र नहीं पढ़ा जाए तब तक हलाल नहीं होगा, वो खा नहीं सकते हो। जानवर हलाल तो है लेकिन हराम जानवर के ऊपर मंत्र काम नहीं आता। जैसे हराम औरतों के ऊपर कितना भी मंत्र पढ़ लो वो तुम्हारे लिए हराम हलाल नहीं हो सकती है। तो ये तस्करा किया गया। हाँ, गैर मुस्लिमीन का ज़बिया, अहले किताब का ज़बिया हलाल है कि हराम? अहले किताब अगर हैं तो फिर उनका ज़बिया हलाल है, लेकिन अगर ये शक हो कि उसने बिस्मिल्लाह का नाम लेकर के नहीं ज़बह किया बल्कि गैरुल्लाह का नाम लेकर के ज़बह किया, अगर आपको यकीन हो जाए तो फिर उसका ज़बिया नहीं खाना चाहिए। पहली बात तो इनके ज़बीहे से बचना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, और अगर मजबूरी के तहत अहले किताब का ज़बिया अगर तुम्हें मिल जाए तो उसका ज़बिया खा सकते हो। लेकिन अगर शक के दायरे में कोई भी चीज़ तुम्हें मिले तो फिर उसको तुम छोड़ दो। वज़रू ज़ाहिरल इस्म व बातिना, ज़ाहिरल इस्म व बातिना, एक खुल्लम खुल्ला गुनाह होता है, एक चुपके चुपके गुनाह होता है। वज़रू ज़ाहिरल इस्म, खुल्लम खुल्ला गुनाह उसको भी छोड़ दो, बातिना चुपके चुपके गुनाहों को भी छोड़ दो। खुल्लम खुल्ला गुनाह किसको बोलते हैं? एक आदमी पार्क में जाकर के अपने गर्लफ्रेंड के साथ मिल रहा है, एक मुसलमान होकर के, खुल्लम खुल्ला। शराब जाकर के होटलों में जाकर के पी रहा है, कोई टेंशन नहीं है, आदमी देख रहा, मुसलमान है, टोपी कुर्ता पाजामा लगा करके। एक जगह मैं गुजरात गया था प्रोग्राम करने के लिए, गुजरात, वहाँ पे एक ऐसे मौलाना को देता, वही जो 3 मंजिला टोपी पहनते हैं, टोपी पहना हुआ है और सिगरेट बाजार में पी करके चल रहा है। मैं कहा मौलवी साहब क्या कर रहे हो ये? बोला सब चलता है। मैं कहा अगर तुमको गलती करना तो चुपके क्यों, तुम्हारी वजह से बहुत से लोग गुमराह हो जाएंगे। एक तो ये तो हराम है, सबके सामने खुल्लम खुल्ला गुनाह करने से बचो, क्योंकि अगर खुल्लम खुल्ला गुनाह करने लगोगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का अजाब उसके ऊपर मुसल्लत हो जाता है। जानते हैं हमारे ऊपर अजाब क्यों मुसल्लत है? ये कोरोना वायरस क्यों आया हुआ है? इसकी वजह यही है, जब कौम, हदीस के अल्फाज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसके अंदर 5 चीजें हैं। जब कोई कौम किसी गुनाह को अलल एलानिया करने लगे तो उसके ऊपर हमारा अजाब मुसल्लत हो जाता है। अलल एलानिया, शराब खुल्लम खुल्ला पिया जा रहा है, ज़िना आज खुल्लम खुल्ला हो रहा है, देख रहे हैं। शादीशुदा लड़कियां भी, अभी हमारे पास एक रिपोर्ट आई हुई है कि मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों के साथ भाग करके शादियां कर रही है। कितने रिपोर्ट आ रहे हैं, खुल्लम खुल्ला, ज़िना भी, शराब भी, माल लोन का तो लेन देन तो चल ही रहा है, सब कुछ हो रहा है, ये भी खुल्लम खुल्ला हो रहा है। और इसी के साथ और भी बेकार काम, शिर्क खुल्लम खुल्ला हो रहा है। तो जिस कौम के अंदर ये चीजें आ जाएं, अल्लाह के नबी ने फरमाया गुनाह तुम चुपके चुपके करो तो अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा, लेकिन अगर तुम खुल्लम खुल्ला अलल एलानिया करोगे तो अल्लाह ताला उसके लिए ऐलान जंग करता है कि मैं तुम्हारे ऊपर अजाब मुसल्लत करके रहूंगा। आज ये कोरोना वायरस क्यों नहीं भाग रहा है? हाँ, क्यों नहीं कोरोना वायरस खत्म हो रहा है?
इतने तेजी के साथ आज ये मुसलमान कौम जो कम से कम इस पूरी दुनिया के लिए आइडियल है, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, ये मुसलमान कौम दूसरों के लिए आइडियल है। यही मुसलमान कौम दूसरों के लिए आइडियल नहीं है। आज मुसलमान चोरी में आगे है, आज मुसलमान झूठ में आगे है, आज मुसलमान जिना में आगे है, शराब में आगे है। ये मुसलमान कौम, गौर कीजिए मेरे भाइयों, वज़रू ज़ाहिर अल इस्मी व बातिना, खुल्लम खुल्ला बुराई से भी अपने आप को बचाओ और चुपके चुपके भी बुराई से बचाओ। चुपके चुपके वाला मामला, बहुत सारे मामला थे। मोबाइल का जरिया है, कौन देखने वाला है, कौन जान रहा आपकी बात किससे होती है, कितने आपके फ्रेंड लिस्ट में कितने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, कौन जान रहा है। वह बातिना के अंदर ये सब शामिल है कि आपके अंदर कितनी बुराइयां हैं, ये आप खुद जान रहे हैं। लोगों के बीच में तो बहुत अच्छा, लोगों के बीच में जब बाजारों में चलो तो हमारी बास बहनों का भी मामला यही है, पर्दे और निकाब के साथ, लेकिन उनके मामलात को जरा देखो, कभी कभी चेक होते हैं, कभी मामला, अरे वो लड़की तो भाग गई फरा गैर मुस्लिम लड़की के साथ। मेरे प्यारे साथियों, वह बातिना के अंदर ये सब शामिल है। बंद कमरे के अंदर मोबाइल से गलत चीजें इस्तेमाल करना, देखना, चैटिंग करना, बातें कर, ये सब बातिना के अंदर शामिल है। अल्लाह तबारक व तआला हमें ज़ाहिरी और बातिनी दोनों गुनाहों से अल्लाह हम सबको महफूज अता फरमाए। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने 10 वसीयत, अल्लाह तबारक व तआला की 10 वसीयत, कुल तालू अत्लु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम अल्ला तुश्रिकू बिही शैया व बिल वालिदैनि इहसाना व बिज़िल क़ुरबा व बिल वालिदैनि इहसाना व ला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाक़ नहनु नरज़ुक़ुकुम व इय्याहुम व ला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हरा मिनहा व मा बतन व ला तक़्तुलुन नफ़्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़्क़ ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम ताक़िलून। 10 बातें अल्लाह ने फरमाया, ऐ नबी ऐलान कर दो, तालो आओ आओ जरा मैं तुम्हें एक अच्छी बात बताऊं। ऐ नबी कह दो, तालो आओ मेरे करीब और जरा करीब होकर के बैठ जाओ। उतलू मैं पढ़ करके तो सुनाओ जो तुम्हारे ऊपर अल्लाह ताला ने हराम कर दिया है। पहली चीज जो हराम किया है, अल्लाह तुश्रिकू बिही शैया, उस अल्लाह के साथ किसी को शरीक कभी भी हरगिज़ हरगिज़ मत करना। पहला शिर्क मत करना, बोटी बोटी कर दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए, कुछ भी कर दिया जाए। ऐ मुआज़ इब्न जबल इन कुतिलता व हुर्रिकता, तुम्हें जला दिया जाए, तुम्हें मार दिया जाए, तुम्हें बोटी बोटी कर दिया जाए, तुम कभी भी शिर्क मत करना, पहला काम। और दूसरा, व बिल वालिदैनि इहसाना, अपने माँ बाप के साथ हमेशा अच्छा सलूक करना, जवानी में भी बुढ़ापे में भी हर हाल में भी तुम अपने माँ बाप के साथ कभी भी गलत सलूक मत करना, उनके साथ हमेशा प्यार और मोहब्बत के साथ रहना। जिहाद से ज्यादा अफजल अमल है माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना। एक आदमी आया अल्लाह के नबी के पास, अल्लाह के नबी मुझे जिहाद करने की इजाज़त दे दीजिए, जिहाद करने की। आपने फरमाया तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं? बोला माँ जिंदा है। बाप ने, हाँ माँ जिंदा है। इन्नल जन्नत तहता उम्महातिकुम, इन्नल जन्नत तहता क़दामिकुम, कहीं फरमाया तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, जा माँ की खिदमत कर, माँ के साथ अच्छा सलूक कर और जन्नत हासिल कर ले। ये फरमाया व बिल वालिदैनि इहसाना। उसके बाद वला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाक़। आज देखिए बच्चों को कत्ल किया जा रहा है, बच्चों को कत्ल मत करो, मत मारो, आज किया जा रहा है। हालात तो ये है, आज रहमे मादर में मार दिया जा रहा है, बोटी बोटी कर दिया जा रहा है। 2-4 बच्चे होने के बाद दवाई इस्तेमाल करके उस बच्चे को मर्डर और कत्ल किया जा रहा है। क्यों? हमें खिलाना पड़ेगा, हमें पिलाना पड़ेगा, परवरिश करनी पड़ेगी। मेरे भाइयों, अल्लाह कह रहा है मेरे बंदे मेरे ऊपर तवक्कुल कर, भरोसा कर, हम तुमको जैसे रोजी देते हैं, तुम्हारे वो बच्चे वो औलाद जो दुनिया के अंदर आने वाले, उसको रोजी रोटी हम देंगे। नहनु नरज़ुक़ुकुम व इय्याहुम। उसके बाद वला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हरा मिनहा व मा बतन, तुम फाहिशा के करीब, गलत काम के करीब खुल्लम खुल्ला भी मत जाओ और चुपके चुपके भी मत जाओ। दोनों तरीके से गलत काम से बचो। अलल एलानिया भी गलत काम मत कर और चुपके चुपके भी मत कर। वला तक़्तुलुन नफ़्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़्क़, और किसी को ना हक कत्ल मत करो। आज कहता है इस्लाम टेररिज्म है, इस्लाम दहशतगर्दी की तालीम देता, कहा नहीं,
बगैर किसी कसूर के नाहक को कत्ल करना ये अल्लाह ताला ने तुम्हारे पर हराम करार देता है। जो आदमी मस्जिदों में मंदिरों में बम फोड़ता है, जो आदमी जाकर के दूसरों में बम फोड़ करके मारता है, मैं उसकी मजम्मत करता हूं और कुरान उसके बारे में कहता है कि वो मुसलमान नहीं है बल्कि वो हराम काम कर रहा है। हमें और आपको ये गैर मुस्लिमों को बताना होगा। मुसलमान इंसान को मारने के दूर की बात, इंसान को मारने की दूर की बात, अगर कोई आदमी एक बिल्ली को मार दे, जानवर को मार दे, बिल्ली जो आपके घर में आना जाना करती है, अगर उस बिल्ली को मार दे, बांध दे, ना खिलाए ना पिलाए। आपने फरमाया पिछले जमाने में एक औरत थी जो बिल्ली को बांध करके रखी, न खिलाया न पिलाया, वो बिल्ली मर गई। आपने फरमाया दाखिल अन्नार, वो औरत इस काम के करने की वजह से जहन्नम में चली गई। एक जानवर को मारने की वजह से आदमी जहन्नम के अंदर दाखिल हो जाता है, तो कि इंसान को बगैर किसी जुर्म के कोई मार दे और अपने आप को जन्नती समझने लगे, अपने आप को बड़े मुसलमान समझ, नहीं, वो मुसलमान नहीं है मेरे भाई। जो बगैर किसी जुर्म के आप किसी को मार नहीं सकते हैं। हाँ, आपको कत्ल किया है तो उसके बदले कत्ल है। आपका नाक काटे तो आप उसका नाक काटे, कान काटे तो कान काटे, है क़िसास है। कुतिबा या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसास अल हुर्र बिल हुर्र वल अब्दु बिल अब्दि वल उन्सा बिल उन्सा, ये है मौजूद, लेकिन किसी ने कोई कत्ल नहीं किया। वो जो बंबई के अंदर जो हमला हुआ था, बंबई के अंदर उस होटल में मासूम बच्चे, स्टेशन में मासूम बच्चे, औरतें, बहनें सब थी। आया टेररिज्म और मुसलमान अपने आप को कहने वाला पूरी गोलियों से उसको मार दिया गया। वो मुसलमान हो सकता है? नहीं, वो मुसलमान नहीं हो सकता मेरे भाइयों। उसके बाद वला तक़रबू माल अल यतीम, 10 चीज़ों में 5वीं 6ठी चीज़, वला तक़रबू माल अल यतीम, यतीमों के माल को मत खाओ। यतीम का माल, बहुत से मदारिस वाले होते हैं यतीमों के माल पे पैसा लाते हैं और अपने जेब में खर्च कर लेते हैं। हाँ, अक्सर मदारिस के नाजिम को देखिए, पहले कुछ नहीं था, नाजिम बना तो बेहतरीन महल बन गया, गाड़ियां, कहां से आया ये? वला तक़रबू माल अल यतीम, यतीमों के माल को मत खाओ। हाँ, अगर यतीम तुम्हारे अंदर में अभी बच्चा है, जवान नहीं हो रहा है, तब तक तुम उसके मालों की हिफाजत करो, उसके माल से तुम बिजनेस करो। लेकिन जैसे वो बच्चा यतीम जब जवान हो जाए तो फिर जवान होने के बाद यतीम नहीं रहता, उनके माल को उसके सब हवाले कर दो, उनके सपुर्द कर दो, उन्हें दे दो, उनके माल को तुम्हें खाने की जरूरत नहीं है। फरमाया वअऊफुल कैल वल मीज़ान बिल क़िस्त, तौलो तो बिल्कुल इंसाफ के साथ तौलो, डंडी मत मारो। हमारे यहाँ कुछ लोग होते हैं डंडी मारते हैं, डंडी मत मारो, तौलो इंसाफ के साथ तौलो। उसके बाद वो बिअहदिल्लाह व इज़ा क़ुल्तुम फ़अदिलू, जब बोलो तो सच बोलो। जब आपको इंसाफ, जब आपको जज बनाया जाए, फैसल बनाया जाए और आप जब बात करने लगो तो ये मत देखो ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा दुश्मन है, हक बात बोलो, गरचे आपका रिश्तेदार ही क्यों नहीं हो। गलत उसने किया तो उसको बोलो कि तुमने गलत किया है। ये कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। अपने घर का मामला हो जाए, अरे मैं बोल दूंगा तो मेरा भाई नाराज हो जाएगा, मेरा चचा नाराज हो जाएगा, तो चेहरा देख करके आदमी बोलता, सच बात नहीं बोलता, हक बात नहीं बोलता है। अल्लाह ताला ने वसीयत की है इंसानों को, बंदों को, ऐ मेरे बंदो जब भी बोलो सच बोलो, गरचे वो तुम्हारा रिश्तेदार ही क्यों ना हो, फिर भी तुम सच बात बोलो। उसके बाद वह बिअहदिल्लाहि औफू, जो अल्लाह से तुमने वादा किया उस वादा को तुम पूरा करो। वादा किया है कि हम शिरक नहीं करेंगे, शिरक मत करो। वअन्न हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमन फत्तबिऊह, यही इस्लाम ही सीधा रास्ता है, इसके अलावा जितने भी रास्ते तमाम के तमाम रास्ते गलत हैं। वअन्न हाज़ा, एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत्तन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतूतन अन यमीनिही व अन शिमाली, नबी अकरम ने लकीर खींचा और लकीर खींचने के बाद दाएं तरफ 2 लकीर और बाएं तरफ लकीर, 2 लकीर खींच दिया।
اور ان لکیروں میں چھوٹی چھوٹی لکیریں آپ نے کھینچی، یا دائیں طرف لکیریں کھینچی اور بائیں طرف لکیریں کھینچی. پھر فرمایا لوگوں یہ جو تم لکیریں دائیں بائیں دیکھ رہے ہو ان تمام راستوں میں شیطان بیٹھے ہوئے ہیں جو تمہیں غلط راستے کی طرف بلا رہے ہیں. آ جاؤ اجمیر کی طرف، آ جاؤ حاجی بابا کی طرف، آ جاؤ فلاں کی طرف، آ جاؤ فلاں کی طرف، یہاں تمہیں نجات مل جائے گی. فرمایا نہیں، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہی سیدھا راستہ، اسلام کو پکڑے رہو. ان راستوں کو پکڑ نہیں بولتے ہیں. امام کے چھوڑ نہیں سکتے ہیں، رسول کی بات چھوڑ سکتے ہیں، امام کے نہیں. امام ابو حنیفہ کو پکڑے ہوئے، امام شافعی کو پکڑے ہوئے، امام مالک کو پکڑے ہوئے، امام احمد ابن حنبل کو پکڑے ہوئے. نہیں، پکڑنے کی کیا ضرورت ہے، امام ہیں. اگر ان کی بات محمد رسول اللہ سے میل کھا رہی ہے تو آمنا وصدقنا، ان کی بات کو مان لیں گے. اگر ان کی بات محمد رسول اللہ سے میل نہیں کھا رہی ہے، حضرت امام مالک نے کہا تھا یہ محمد رسول اللہ کی قبر ہے، یہ وہ واحد شخص ہیں جن کی بات کو لے سکتے ہیں واپس نہیں کر سکتے. دنیا کی کوئی شخصیت ایسی نہیں ہے جن کی بات لے بھی سکتی ہے اور ٹھکرا بھی سکتی ہے. دوسری جتنی بھی ہے شخصیتیں لیا بھی جا سکتا ہے، واپس بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن محمد رسول اللہ ایک ایسی شخصیت ہے جن کے بات کو واپس نہیں کیا جا سکتا ہے. تو میرے بھائیوں اس کے بعد فرمایا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اسی کے اوپر ہماری موت، ہماری زندگی ہونی چاہیے. اللہ کے لیے مرنا ہے، اللہ کے لیے جینا ہے، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے دشمنی، اللہ کے لیے صدقہ و خیرات، اللہ کے لیے زکوٰۃ، اللہ کے لیے نماز، اللہ کے لیے شادی بیاہ. کوئی آدمی شادی کر رہا ہو تو اللہ کے لیے، یعنی کہ اللہ میں نکاح کر رہا ہوں تاکہ میں برائی سے بچوں اور تاکہ تو راضی ہو. للہ رب العالمین، نماز، روزہ، صدقہ، خیرات، قربانی، ساری کی ساری چیزیں اللہ تیرے لیے ہے. یہ انسان کو اپنی زبان سے اقرار کرنا ہوگا. پوری زندگی اللہ کے لیے قربان کر دیجیے، کیونکہ وہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ہے. اس کے بعد والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون. قیامت کے دن ہر انسان کو تولا جائے گا. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کا ترازو لے کر کے آئے گا. انصاف کا ترازو. انصاف کا ترازو کون سا ترازو؟ جس میں ڈنڈی نہیں مارا جائے گا. انصاف کا ترازو. انسان کو تو بھی تولا جائے گا، انسان کے اعمال کو بھی تولا جائے گا، اور انسان کے جو اعمال لکھے ہوئے صحیفہ اعمال اس کو بھی تولا جائے گا. فمن ثقلت موازینہ، تولا جا رہا ہے. جس کی نیکیاں برابر، جس کی نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی اور جس کی برائیاں کم ہو جائیں گی، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہو جائیں گے، یہی لوگ جنت میں جائیں گے. جس کی نیکیاں ایک نیکی زیادہ ہو جائے تب بھی وہ جنت میں جائے. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، لیکن معاملہ اگر الٹا ہو جائے، ترازو میں تولا جا رہا ہے، نیکیاں کم پڑ گئی، برائیاں زیادہ ہو گئی، ایک نیکی کم ہے، برائیاں زیادہ ہے، قرآن کہتا ہے اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا. اور پھر فرمایا جس کی نیکیاں بھی اور جس کی برائیاں دونوں کے دونوں برابر ہو جائیں. کبھی کبھی ہوتا ہے نا، نیکیاں بھی، کبھی کبھی دیکھیے کرکٹ دیکھنے والے کو دیکھیے میچ ڈرا ہو گیا. ہاں، جس کی نیکیاں اور برائیاں دونوں کے دونوں برابر ہوں، اب اس آدمی کو کیا کرے گا اللہ؟ کیا جنت میں ڈالے گا کہ جہنم میں ڈالے گا؟ فرمایا نہیں، وہ کہاں ہوں گے؟ وہ آراف کے اندر ہوں گے، نہ جنت میں ہوں گے نہ جہنم کے اندر ہوں گے، بلکہ جنت اور جہنم کے درمیان میں ایک دیوار ہوگی، وہاں پہ وہ کھڑے ہوں گے اور جنتیوں کو بھی دیکھیں گے اور جہنمیوں کو بھی دیکھیں گے. جب جنتیوں کو دیکھیں گے تو جنتیوں سے کہیں گے ارے تم کھا رہے ہو، مستی کر رہے ہو، موج کر رہے ہو، ہمیں بھی دے دو، پیاس کے مارے ہمارا بھی گلا پھٹا جا رہا ہے، ہمیں بھی دے دو. جہنمیوں سے جب جہنمیوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ اللہ ان کے طرف مجھے بھی کبھی بھی مت بھیجنا. یعنی وہاں سے اس کو دونوں نظر آئیں گے، دونوں کے دونوں نظر آئیں گے، جہنمی بھی
और जन्नती भी दोनों। वनादा अस्हाबुन नार अस्हाबल जन्ना अन नफीज़ु अलैना मिनल मा। जहन्नमी लोग तो जहन्नम के अंदर होंगे, जन्नती लोग जन्नत के अंदर होंगे। लेकिन सिस्टम ऐसा होगा, जहन्नमियों को अल्लाह तबारक व तआला अजाब बढ़ाने के लिए जन्नतियों की नेमतों को दिखाएगा। जन्नती लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, जो रोजेदार हो उसके सामने ठंडा ठंडा पानी पीजिएगा तो कैसा लगेगा? रोजेदार हो उसके सामने बिरयानी खा रहे हो, एक से एक डिश खा रहे हो, कैसा लगेगा? तकलीफ होगी कि नहीं होगी? ऐसी जहन्नमी लोग ऐसे तो तड़प रहे होंगे, भूख भी लगी हुई होगी। हदीस के अल्फाज हैं 40 साल तक उसे पानी नहीं मिलेगा, कहेगा अफीज़ु अलैना मिनल मा। ऐ जन्नतियो, ऐ मेरे दोस्त, ऐ मेरे भाई, ऐ मेरी बहन, ऐ मेरी सिस्टर, ऐ मेरे वालिद, दुनिया में तो मेरा दोस्त था, दुनिया में तो मेरा बाप था, दुनिया में तो मेरा भाई था। अफीज़ु अलैना मिनल मा, हमें पानी दे दे, ये गला सूखा जा रहा है, 40 सालों से मैंने पानी नहीं पिया है, पानी दे दी, जरा हलक सूख गया है, गीला पड़ जाएगा, थोड़ी से पानी हमें पिला दे। कहेगा उसके भाई रिश्तेदार जवाब देंगे नहीं, बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। इन्नल्लाह हर्रमहुमा अलल काफिरीन, काफिरों के ऊपर ये पानी, ये खाना, ये सब कुछ हराम है। दुनिया में बीवी बच्चों के लिए कितना कर रहे हो, लेकिन जब जहन्नम के अंदर अगर चले गए, बीवी से मांगोगे, बीवी नहीं, काफिर वक्त नहीं देंगे, तुम्हारे ऊपर हराम है। बच्चे नहीं देंगे, तुम्हारे ऊपर हराम है, नहीं देंगे। मेरे भाइयों, तो कुछ लोग जन्नत में चले जाएंगे, कुछ लोग जहन्नम में चले जाएंगे। जिसकी नेकियां ज्यादा जन्नत, जिसकी नेकियां कम जहन्नम, और जिसकी नेकियां और बुराइयां दोनों के दोनों बराबर, वो आराफ में होंगे, ना जन्नत ना जहन्नम। वेटिंग लिस्ट में किसी का टिकट कंफर्म नहीं होता, देखते कि नहीं, वेटिंग में लगा हुआ है, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। हदीस में आता है कि कन्फर्म इसका भी हो जाएगा, कुछ दिनों के बाद अल्लाह तबारक व तआला इसको भी जन्नत के अंदर दाखिल कर देगा। लेकिन जो जहन्नम के अंदर चला जाएगा, जन्नत जहन्नम वालों को अल्लाह ताला तकलीफ देने के लिए जन्नतियों की नेमतों को दिखाएगा। जैसे आज हम यहाँ तकरीर कर रहे हैं, या कभी कभी आप घर फोन कीजिए, मोबाइल का ज़माना है, सब कुछ दिख रहा है, क्या खा रहा है घर में, नहीं खा रहा है, क्या कर रहा है, हाँ देख रहे हैं कि नहीं? तो जब इंसान अपनी अकल से ये बना सकता है जो अकल अल्लाह ने दी है, तो अल्लाह ताला के यहाँ ऐसा सिस्टम होगा कि जहन्नमी लोगों के पास भी ऐसे ऐसे पर्दे लगे हुए होंगे कि वो देखेगा, ये जन्नती खा रहे हैं, ये खा रहे हैं। कहेगा जन्नती भी जहन्नमियों से कहेगा, जहन्नमी भी जन्नतियों से कहेगा, दोनों सवाल जवाब भी होगा, बातचीत भी होगी, बातचीत दे दो दे दो दे दो। जहन्नमियों से कहेगा मा सलकाकुम फी सकर, ओ मेरे दोस्तों, ओ मेरे भाइयों, जहन्नम में क्यों गए? जवाब यही होगा, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे, हम मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाया करते थे, हम गप्पों में लगे रहते थे, हम गप और हम मजाक में लगे रहते थे। ये पूरा का पूरा तज़किरा है। उसके बाद हज़रत आदम और हज़रत हव्वा और इब्लीस का पूरा वाक़या है, जो जन्नत में गए, उसके बाद क्या मामला हुआ, इसको कहीं और बयान करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला ने उसके बाद फरमाया, या बनी आदम अल्ला यफ्तिनन्नकुम शैतान, ऐ इब्ने आदम, शैतान कहीं तुमको बहका न दे। जिस तरीके से तुम्हारे बाप को और तुम्हारी माँ हव्वा को बहका करके जन्नत से निकाल दिया, यानी एक गलती की वजह से जन्नत से निकल गए, एक गलती के पादाश में, सिर्फ एक गलती की वजह से जन्नत से निकल गए। यानी गुनहगार लोग जन्नत में नहीं रहेंगे, चाहे एक गलती ही क्यों ना हो। एक गलती की वजह से अल्लाह ताला ने जन्नत से निकाल दिया। ऐ मुसलमानों, ऐ मेरी बहनों, और इस चैनल के जरिए से सुनने वालों, गौर से सुनो, हम रोजाना इतने ज्यादा गलतियां करते हैं, इतने ज्यादा गुनाह करते हैं। क्या हम इतने ज्यादा गुनाह करके हम जन्नत में जा सकते हैं? एक गुनाह करके अल्लाह ताला ने जहन्नम, अल्लाह ताला ने जन्नत से निकाल दिया, दुनिया में भेज दिया, और 1000 गलतियां करके कह रहे हैं हम जन्नत में चले जाएंगे। इतना आसान नहीं है। शैतान से बचो, ये तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन है। ये तुम्हें चाहता है कि तुम्हें
लिबास, तुम्हारे के लिबास ऐसा पहना है, अल्लाह ताला ने फरमाया वह लिबास तक़वा ज़ालिका खैर, अल्लाह ताला ने लिबास उतारा है तुम्हारे लिए, लिबास पहनो। लिबास से एक ये होता है कि आपका सत्र, आपका शर्मगाह ढक जाता है। दूसरा ये है कि आप खूबसूरत लिबास से लगते हो। नमाज पढ़ने के लिए आओ, कुरान में है या बनी आदम खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, इसी पारे के अंदर जब नमाज पढ़ने के लिए आओ तो अच्छे बन कर के आओ, खूबसूरत बन कर के आओ, क्योंकि इन्नल्लाह जमील युहिब्बुल जमाल, अल्लाह खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद करता है। नमाज पढ़ने के लिए आए, कुछ लड़कों की जिन्स को देखिए, इधर फटाए इधर फटाए इधर फटाए, सब दिख रहा है, देखिए ऐसे ऐसे पहन करके आ रहे हैं। नमाज पढ़ने के लिए आप आ रहे हैं, अल्लाह के घर में आए तो ऐसा पहन करके आइए कि नमाज रुकू सही से कर लें, सजदा सही से कर लें, सत्र आपका ढका रहना चाहिए, सत्र आपका ये कंधा ढका रहना चाहिए, ये नाफ से लेकर के ये घुटना तक, ये शर्मगाह है मर्दों का, औरतों का तो पूरा ये ढका रहना चाहिए, मर्दों का यहां से लेकर के यहां तक ढका रहना चाहिए, तब आपकी नमाज होगी। इससे मसला ये भी निकला, कोई आदमी टी शर्ट पहन करके और शर्ट पहन करके नमाज पढ़ता तो उसकी नमाज हो जाएगी, लेकिन खूबसूरत बन करके आदमी आए, अच्छा और बेहतर। सऊदी अरब का लिबास देखिए, नमाज पढ़ते हैं तो कितना अच्छा लगता है, वो लिबास कितना बेहतर लिबास है। हिंदुस्तान वाले में ऐसे ऐसे हीरो ने ऐसे ऐसे कपड़े निकाल दिए हैं कि वो पहन करके नमाज पढ़ता सही से रुकू भी नहीं कर पा रहे, इतना टाइट पहन लिया है, सही से सजदा नहीं जा पा रहा है। कौन सी नमाज तुम पढ़ रहे हो? या बनी आदम, ऐ बनी आदम खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, जब नमाज पढ़ने के लिए आओ तो अच्छे कपड़े पहन करके आओ, बढ़िया कपड़ा पहन करके आओ, खूबसूरत बन करके आओ, क्योंकि अल्लाह के घर में आ रहे हो, आम घर में तुम दाखिल नहीं हो रहे हो। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया उदउ रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफिया। रमज़ान का महीना, इस कुरान की आयत को लेकर के जाइए, अल्लाह से मांगो, उदउ रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफिया, तज़र्रुअ के साथ और तन्हाई के साथ, रो रो करके मांगो और तन्हाई में मांगो। मतलब अल्लाह से जब मांगो तो मांगने का तरीका क्या होना चाहिए? जब अल्लाह, जैसे बच्चा कैसे मांगता है, बच्चा अपनी मां से बाप से किस तरीके से मांगता है, जब तक ले नहीं लेता तब तक छोड़ता नहीं है, रोते रहता है, दे 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 दे। यानी जब तुम अपने रब से मांगो उसी बच्चे की तरह मांगो, जैसे बच्चा अपने मां से मांगता है वैसे तुम भी अपने रब से मांगो, रो रो करके गिड़गिड़ा करके मांगो और तन्हाइयों में मांगो, अपने गुनाहों की माफी मांगो, यकीन के साथ मांगो कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे देगा। लेकिन दुआ के अंदर हद से ज्यादा नहीं, गुलू नहीं करना चाहिए। दुआ के अंदर क्या होता है? गुलू। एक आदमी दुआ कर रहा था कि अल्लाह सबको जन्नत के अंदर दाखिल कर दे, तो फिर जहन्नम क्यों बनाया गया है? ऐसी दुआ नहीं होनी चाहिए, दुआ में गुलू नहीं होना चाहिए। एक जगह दुआ कर रहा था कि अल्लाह मुझे जन्नत के दाहिने तरफ से फला बागीचे के अंदर जगह देना। नबी ने फरमाया ये कौन सी दुआ मांग? अरे सिर्फ मांग जन्नत दे, और मांगना है तो जन्नतुल फिरदौस मांग, जन्नत के बाएं तरफ में फला मकान में जगह देना, ये दुआ में गुलू है। या तद्दूना फित तुहूरी व दुआ, मेरी उम्मत में कुछ लोग ऐसे आएंगे जो तहारत में, वजू में, पाकीज़गी में और दुआ के अंदर गुलू करेंगे। कुछ लोग वजू बनाते तो बना रहे हैं। अरे भाई जितना मरतबा बनाने को बोला कि उतनी बना, यकीनी धुला कि नहीं धुला, धुल रहे हैं, पानी पानी पे खर्च कर रहे हैं, जितना बनाने को उतनी बनाओ। पैर धो रहे हैं तो धो रहे हैं, ऐसा लगता है कि एकदम पूरा साफ करके दोबारा कभी धुलना ही नहीं है, इतना धुल रहा है। तो दुआ के अंदर भी कुछ लोग दुआ कर रहे हैं, जोर से दुआ मांगेंगे, दूसरे लोग ताकि देखें दुआ कर रहा है यार, इतना जोर जोर से दुआ मांगेंगे कि दूसरे लोग अपनी दुआ भूल जाएंगे, दूसरी दुआ सुनेंगे क्या मांग रहा है। अरे अल्लाह को पुकार रहे हो जो चूंटियों की आवाज को सुनता है, तदउ रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफिया, मांगो तन्हाई में मांगो। अल्लाह तबारक व तआला जब एक चूंटी की आवाज़ को सुन सकता है तो तुम्हारी दुआ को क्यों नहीं। और इस रमज़ान के महीने में मेरे भाइयों, आंसू आपका गिरने से पहले, बंदे के हाथ ज़मीन में आने से पहले अल्लाह कहता है हम उसकी दुआ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और ख़ास करके जब इफ्तार के वक्त हो तब दुआ मांगिए,
इफ्तार के वक्त, फ़र्ज नमाज के बाद दुआ मांगिए, उस वक्त भी दुआ कबूल होती है। बाप अपने बच्चों के लिए, माँ अपनी बेटियों के लिए दुआ मांगे, क्योंकि माँ की दुआ, बाप की दुआ अल्लाह ताला रद्द नहीं करता है। रोज़ेदार की दुआ अल्लाह तबारक व तआला रद्द नहीं करता है। कहीं सफ़र में होता आप दुआ मांगिए। बारिश हो रही थी आज, मैंने कहा बारिश के वक्त बारिश देख करके अगर कोई दुआ करे तो अल्लाह ताला उसकी दुआओं को रद्द नहीं करता है। रमज़ान के महीने में ख़ास करके ये दुआ का महीना है, दुआ करते रहिए। इस दुआ में, इस महीने में अगर अपने गुनाहों की माफ़ी ना कर सके तो कौन सा महीना आएगा मेरे भाई। जो अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हम जमी मुसलमानों को जब तक ज़िंदा रखे, अल्लाह ईमान की हालत में ज़िंदा रख, जब भी हमारा ख़ात्मा हो ईमान की हालत में ख़ात्मा हो। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।